In class ninth, we have read that when two non-conducting bodies such as glass and silk or ebonite and fur are rubbed together, there is a transfer of electrons from one body to the other. These are the basic examples that we used to do in our junior classes. We rub the comb with the hair and we try to pick up some small pieces of newspaper or paper, and the comb is charged and it's attract that piece of paper. So these all are the charged bodies example how the charge transfer. The body which gains electrons become negatively charged, and the body which loses electrons becomes positively charged. So there are two types Thus, of charge: there are positive charge and negative charge. two like charges repel each other while two unlike charges attract each other. The charge on a body is denoted by a symbol Q. So symbol Q and capital Q and a small q is a representation of charge. Clear? So where whenever in physics it is written as a small q or capital Q, to simply understand it's a symbol of charge. Simple like charge repel each other and unlike charge attract each other. Up to here, is these things are clear to you? Okay. Yes, ma'am. Now move on further. Unit of charge. The SI unit of charge is coulomb. Symbol C. Capital The C is smaller representation of units of SI unit of charge and it is written as coulomb. Coulomb also you people used to say. A smaller unit of charge is millicoulomb, that is small m and c. Microcoulomb and nanocoulomb. These are the like a very minute measurement of the charges. So these are the here it is given 1 microcoulomb is equals to 10 ki power minus 3 coulomb. So these are the conversion, and kindly have a note in the beginning of your chapter note, because when you will use to solve the numericals, these are very important for you. The quantity of charge on a body is determined by the number of electron in deficit, and if the body is positively charged, or the number of electron in excess if the body is negatively charged. Thus charge on a body will always an integer multiple of charge on an electron, that is q will be positive or negative ne. So charge will be when a body is charged, whether it is positively charged or negatively charged, the charge will be present on that body in a whole number. Okay, ma'am. Or integer multiple of a charge electron, that is plus or minus. Plus for positive charge, minus for negative charge. When n is a number of electron, is deficit for plus sign and its excess for negative sign. So it means ki when there is a more electron, then what you will do, which symbol you will use to represent? When there is a excess electron, it means ki negative sign, and deficit of electron means positive sign. Positive sign. So charge on one electron is equals to minus 1.6 multiplied by 10 के power 19 minus 19 कूलम. ये छोटे छोटे जो मेजरमेंट है ना, अभी अपने कॉपी में लिख लीजिए, न्यूमेरिकल्स में यूज होने ही होने हैं. Note, if a non-conductor or insulator, the charge reside on a point where there is excess or deficit electron, that is charge is static. It does not flow. That's why the body behave like an insulator. When the body will have a transfer of charges happening inside the body, then the body will behaving like a conductor. Conductor. On the other hand, it is the conductor such as the metal charge on can move or flow. A conductor, although electrically neutral, has a large number of mobile or free electron in it, which can flow throughout the volume of the conductor. तो free electrons के move होने से electricity generate होती है. तो movement of free electron inside any body forms the current or electricity. Now start the topic concept of current. The charge in motion constitutes electric current. Current is defined as the rate of flow of charge. Underline this and other mention in words, your copy. Because why I am saying all this? Because these are very important for your examination purpose. Little definition looks very little and very easy, but these are very important.
In other words, the current flowing in a conductor is the amount of charge flowing per second across any cross section of it. It Cross is section means denoted by the letter I. inside the conductor you are using that. Cross section area you can also consider. Inside the conductor. If a charge q flows through a cross section normal to its direction of motion in time t, then current I through the conductor is given as I is equal to q Q by by t. T, current flowing per unit time, also known as rate of flow of charge. Okay. So current is equals to rate of flow Note. of charge flowing per unit time in a any cross sectional body. Current in a circuit is measured by ammeter by connecting in series in a circuit. Taking care of the positive marked terminal of the ammeter is toward the positive terminal and the source of current. Ammeter is a device used to measure a electric current inside any closed circuit. Clear? Yes, ma'am. मैम ये सीरीज क्या होता है? सीरीज एक कॉम्बिनेशन है कि बल्ब वगैरह आपको मैं 2 बल्ब दे दूं तो आप उसे लाइक 1 2 3 अरेंज कर दो, पहले एक रख Yes, दिया ma'am. दूसरे को और तीसरे को, इस तरीके से कनेक्ट कर दो, या तीनों को एक ही रो में तीनों को अलाइन कर दो, तो इस तरीके के Yes, ma'am. कॉम्बिनेशन आपके पैरेलल हो जाएंगे। और अगर आप वर्टिकली 1 2 3 रख दे रहे हो तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, और हॉरिजेंटली अगर तीनों को एक साथ रख दे रहे हो तो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। हम सर्किट जब आपको शुरू करेंगे तो ये दोनों कॉम्बिनेशन क्लियर करेंगे। Okay. यूनिट ऑफ करंट। एक मिनट, एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगी, जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट में यूज करते हो तो करंट सेम होता है सारी जगह, इसलिए उसमें एमीटर यूज किया जाता है, क्योंकि हमें करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज नोन एज एमीटर। और जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी का तो उसमें वोल्टेज सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, तो जिसकी वजह से उसमें हम कनेक्ट करेंगे जो डिवाइस वो होगा हमारा वोल्ट मीटर। ओके मैम। अभी ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा जब डायग्राम से हम लोग पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो। Unit of current. The SI unit of charge is coulomb, and therefore current is measured in coulomb per second, which has been given the name ampere, symbol A, in honor of the French physicist Andre Ampere. We define 1 ampere as the current which flows in a conductor when 1 coulomb of charge passes through it in 1 second. That is, 1 is equal to 1 C by 1 S is equal to 1 C S per कैपिटल ए, कैपिटल सी एंड कैपिटल एस किस चीज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है? इज दिस क्लियर टू यू? No, ma'am. कैपिटल ए आपका एम्पियर है, ये आपका एसआई यूनिट है किसका? करंट का। और ये आपके फ्रेंच फिजिक्स के जाने माने एक महान साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट एंड्रे एम्पियर के ऑनर में इसका एसआई यूनिट पड़ा है। और स्मॉल एस सेकंड का है, टाइम का मेजरमेंट, और सी जो है वो आपका चार्ज का मेजरमेंट है, कूलम। So unit of current, the SI unit of charge is coulomb, and therefore current is measured in a coulomb per second, which has been given in name ampere, symbol A, is honor to the French physicist Andre Ampere. We define 1 ampere. ये definition है, underline this and mention in your copy. 1 ampere is equals to current which flow in a conductor when 1 coulomb of charge passes through it in 1 second. क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में तो ये पूछता है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपके बोर्ड में पूछे, बट मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ कि 1 एम्पियर किसके इक्वल होगा। चलिए देखिए, 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड, यानी कि आपका जो करेंट होगा वो 1 एम्पियर के इक्वल कब होगा? जब 1 कूलम चार्ज फ्लो करे पर सेकेंड। बस यही डेफिनेशन वहां पे लिखा हुआ, अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन आते हैं इससे। We define 1 ampere as the current which flow in a conductor when 1 coulomb of charge passes through it in 1 second. Yes, ma'am.
चलिए, नाउ टू एक्सप्रेस अ वीक करेंट सिमिलर यूनिट ऑफ करेंट आर यूज। लिटिल बिट जो कि छोटे मोटे जो हम लोग स्कूल वगैरह के लिए जो बनाते हैं, क्या बोले, मॉडल वगैरह बनाते हैं, टॉर्च वगैरह और कुछ भी चीज़ का मॉडल, पावर हाउस वगैरह, तो बैटरीज वगैरह जो यूज़ करते हैं वो आपके वीक करेंट फ्लो होता है। अगर स्ट्रॉन्ग करेंट रहेगा तो गलती से न्यूड वायर है और टच हो गई तो फिर तो जान चली जाएगी, जिनके साथ ये घटना दुर्घटना घट जाए। तो वीक करेंट से हल्के मल्के झटके बस लगते हैं। To express a weak current, a smaller unit of current are used. They are milliampere, that is small m and a, and microampere, which are related to the ampere as follow. तो ये weak current को measure करने के units हैं. 1 milliampere equals to 10 के power minus 3 ampere and 1 microampere equals to 10 के power minus 6 ampere. सो ये लिख लीजिएगा कि ये किसके किसके इक्वल है, क्योंकि जब भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे तो मे बी मिली में दे दे करंट की वैल्यू या फिर माइक्रो में दे दे, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा जरूर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो सकता है कि कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट पड़े। अब फ्लो ऑफ करंट क्या है, यही आपका फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी है और यहीं से ये कॉन्सेप्ट जनरेट होगा और जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में आई थिंक कि मैक्सिमम यूज है। हम स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं, बल्ब किसी भी कोने में हो, कहीं भी दूर हो, तुरंत ग्लो कर जाता है। तो आप सोचो कि वो कितना स्पीडली ट्रैवल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी। इन मेटल्स द मूविंग चार्ज are the free electron which constitute the current, while in electrolyte and ionized gases both positively charged ion cation, positive charge ion को हम cation बोलते हैं और negatively charged ion को anion बोलते हैं, are moving charges with constitute current। अगर साल्ट है, साल्ट जो हम सब्जी में डालते हैं, आप सर्किट बना लो, क्लोज सर्किट, और साल्ट से टच कराओ तो उसमें आपका करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगी और अगर उसे यूज करोगी तो उससे जरूर करंट फ्लो हो जाता है, क्योंकि साल्ट जो है NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस यानी कि कटायर और अनायन में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो आपका इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है और जिसकी वजह से उसको बरीन सॉल्यूशन भी बोला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इफ एन इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू अ, यहाँ से पकड़ो आप, इफ एन इलेक्ट्रॉन से, If n electrons pass through a cross section of the conductor in time t, then total charge passed through the conductor is given as since once the charge is carried by 6.25 10 to the power 18 electrons, so if ये भी डेफिनेशन मुझे क्लियर करना होगा आपको, तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, कैमरा बैक कर लेती हूँ सो दैट आई कैन मेक इट्स क्लियर। चलिए क्वेश्चन देखिए कि 1 कूलम किसके इक्वल होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया Q इक्वल्स टू NE, पहला एक फॉर्मूला आया था, लिख लीजिए। ये क्या Q क्या है यहाँ पे, Q चार्ज है, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, N नंबर है और E से बताइए। E से electrons चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। charge अब देखिए ये फॉर्मूला बताया था और एक और फॉर्मूला Q इक्वल्स टू NE बताया था और एक आपको फॉर्मूला बताया था I इक्वल्स टू Q/T। तो Q के जगह पे हम NE भी तो रख सकते हैं, रिप्लेस कर दीजिए Q को NE से, NE/T। तो जब हम आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 1 कूलम कितने के इक्वल आएगा, 6.25 इंटू 10 के पावर 18। yes तो 1 कूलम इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18। क्लियर? सो 1 कूलम चार्ज इज कैरिड बाय 6.25 इंटू 10 के इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, दैट्स वाई मैं पॉज कर करके जो भी इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। सो 1 एम्पियर करेंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर implies that 6.25 इंटू 10 रेज टू 18 इलेक्ट्रॉन
पास इन 1 सेकेंड अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो आप देखो कि जब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है किसी क्लोज सर्किट में, तो 1 सेकेंड में 6.25 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पास कर रहे हैं, पर सेकेंड की बात हो रही है। 1 एम्पियर इक्वल्स टू, करेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन ना हो जिसमें, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हो, मेजरमेंट दिया हो। जैसे मैंने आपसे बोला कि 5 kg चीनी, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। मैंने ये तो नहीं कहा ना, अब मैं आपसे कहूँ कि 5 किलोमीटर राइट जाओ, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। मैं किलोमीटर के साथ साथ डायरेक्शन भी मेंशन कर रही हूँ। और जब मैं सिर्फ कह दूँ कि ओनली 5 किलोमीटर, तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। By stating the direction of the current in a conductor, we mean that the direction of motion of electron is opposite to E। तो ये कन्वेंशनल शुरू से ही ये हम लोग इस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट लेना चाहती हो तो दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब प्रोटॉन की तरफ से डायरेक्शन ले लेना है क्लोज सर्किट में। In an electrolyte, if N1 cation each of charge Q1 moves in one direction and N2 anions each of charge Q2 move in opposite direction in time t, the current in the direction of motion of cation will be। तो मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, तो उसमें कटायंस भी होंगे, अनायंस भी होंगे। कटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज, अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो उसमें उस केस में आप जो करंट मेजरमेंट करोगे उसका फॉर्मूला होगा I इक्वल्स टू N1Q1 प्लस N2Q2 बाई T। लिख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जो ऊपर सबके घरों में छत पे जो वाटर टैंक रहता है वो छत पे ना लगा के ग्राउंड पे ही लगाया जाए, तो क्या जो सेकंड फ्लोर पे पर्सन रहता है उसकी टैब में वाटर आएगा? तो वो छत पे इसलिए कि पोटेंशियल डिफरेंट हाइट की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। सबसे ऊपर रहता है, अगर 3 मंजिला मकान है तो तीसरे फ्लोर पे रहता है, ऐसा नहीं कि सेकंड फ्लोर पे हम लगा देंगे पानी के लिए। सो वी नो दैट द चार्ज रिपेल, आपने ये चीज़ें पढ़ी कि जो सिमिलर चार्ज है वो रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल while unlike charges attract each other। If a charge A is brought near to like charge B, some work has done in moving the charge A against the repulsive force or it is due to the other charge B। मान लीजिए कि ये है आपका, एक मिनट फ़ोन को होल्ड कर लेने दीजिए, ये चार्ज ए है और ये चार्ज बी है, और जब हम इस चार्ज ए को बी के पास ला रहे हैं तो इट मे बी कि अगर ये सिमिलर चार्जेस होंगे, सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्सन होगा, और डिफरेंट चार्जेस होंगे तो हो सकता है कि अट्रैक्शन हो। तो चार्ज ए को चार्ज बी के पास लाने में कुछ तो वर्क करना पड़ा है, कुछ तो वर्क करना पड़ा है, और अगर इनमें रिपल्सन हुआ तो कुछ तो फोर्स भी हुआ, रिपल्सिव फोर्स भी क्रिएट करेगा। सिमिलरली इफ चार्ज ए इज ब्रॉट नियर to another unlike charge B, work done by the attractive force is called charge A due to the unlike charge B। The same work is always involved in moving a charge in a vicinity to another charge। Obviously a lots of work is required। आप चार्जेस को वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव करोगी तो देयर lots of work is required। Obviously a lots of work is required in creating an assembly of charges at a point। This is expressed in a term of potential। तो जब आप ये जो वर्क कर रहे हो इस चार्ज को इस चार्ज के पास एक पास एक्यूमुलेट करने में, तो जो आप वर्क कर रहे हो इसी वर्क को हम फिजिक्स में करेंट चैप्टर में पोटेंशियल टर्म देते हैं। Therefore पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ रीजन ऑफ चार्ज इज मेजर इन टर्म्स, ये अंडरलाइन कर लीजिए डेफिनेशन यहाँ से, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ रीजन ऑफ चार्ज इज मेजर इन टर्म ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट जीरो पोटेंशियल टू दैट पॉइंट। आप एक जीरो पॉइंट से किसी चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हो, जो आप वर्क डन कर रहे हो वो आपका पोटेंशियल हो जाएगा। सिंस फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज जीरो एट इनफाइनाइट सेपरेशन, देयरफॉर वी कंसीडर द पोटेंशियल टू बी जीरो व्हेन द टेस्ट चार्ज इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कि डिस्टेंस इज नॉट नोन, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, बहुत दूर हो सकता है। तो जब दोनों चार्ज अलग अलग सेपरेट इंटिटी के साथ हैं तो हम मानेंगे कि जीरो है। जब उनको क्लोज लाने में जो वर्क डन हम कर रहे हैं वो हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। चार्ज इन इनफाइनाइट सेपरेशन फ्रॉम
the other charge. The work done is bringing the test charge from infinity to a point in a region of other charge when divided by the value of test charge. So expressed in per unit expressed for unit charge gives the potential at the point. अब पोटेंशियल की डेफिनेशन जो आ रही है ब्रैकेट में, इसे लिख लीजिएगा. पोटेंशियल को सिंबल v से रिप्रेजेंट किया जाता है और पोटेंशियल भी आपका स्केलर क्वांटिटी है. तो जो स्केलर क्वांटिटी है वहाँ पे आप लिख लेना पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर वी और इट इज स्केलर क्वांटिटी. माइन्यूट टर्म्स है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. So what is potential? The definition given here is potential at a point is defined as the amount of work done per unit charge in bringing a positive charge from infinity to that point. Why it is mentioned here infinity? Because we don't know the distance here. Distance is not measurable. And it will be ideal and suitable for everyone. If we will we can put here definition of distance here कि इतने दूरी से ला रहे हैं, तो it will not this definition is not universal for the every types of charges that are moving. It is always denoted by capital letter V and it is a scalar quantity. Now what are the points you have to note here? The potential is a positive at a point in a density of a positive charge. Since work has to be done on the positive test charge against the repulsive force due to positive charge in bringing it from infinity, while it is negative at a point of density of negative charge, since the attractive force on a positive test charge due to the negative charge done by work itself or work is obtained. So if you are bringing this test charge, maybe this one is a negative or positive, so if it is negative and this is positive, it will attract each other, and if it is positive and this is also positive, they will have a repulsive force. Figure 8.1 is a test charge plus q means positive charge is brought from infinity to point P in density of positively charged body. So black dotted diagram is already positively charged body and you are bringing some positive charge to near about it. From infinity to you are bringing here. So if W joule of work is done in bringing the test charge in Q coulomb from infinity to point P, the electric potential V at a point P is given at. मान लीजिए आप पॉइंट P तक उस पॉजिटिव चार्ज को ला रही हो, तो यहाँ पर आप पोटेंशियल डेफिनेशन की जो फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन, V इक्वल्स टू W बाई Q. W मीन्स जो वर्क आपने किया है, वर्क डन टू ब्रिंग दैट पॉजिटिव चार्ज टू द एनी पॉइंट. W एंड Q जो है वो आपका चार्ज. सो ये भी आप अंडरलाइन करके मेंशन कर लेना. ऑब्वियसली द वर्क नीडेड टू मूव अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V विल बी. तो नाउ योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपने पोटेंशियल निकाल लिया, अब आप वर्क डन क्या हो जाएगा, Q इंटू V. यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? फ्रॉम इक्वेशन 8.5 यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू यूनिट ऑफ वर्क डन दैट इज W एंड यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल्स टू Q. द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. तो यहाँ पे वर्क के नीचे आप फॉर्मूला लिख लीजिए और इसका SI यूनिट जूल लिख लीजिएगा एंड दैट इज चार्ज इज कूलम. सो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज जूल पर कूलम. तो वर्क का जो SI यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम हो जाएगा. क्लियर? Yes, ma'am. तो जूल पर कूलम इज SI यूनिट ऑफ योर पोटेंशियल यानी कि वोल्ट. So SI unit of potential is joule per coulomb, which has been given in a name volt symbol V in honor of a scientist Alessandro Volta. Hence the potential. Now kindly the similar thing जैसे मैंने 1 कूलम के लिए बताया था, वैसे ही आपका 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, या तो वोल्ट कहिए या जूल पर कूलम कहिए, सेम है. Okay, ma'am. आप जूल पर कूलम को वोल्ट भी लिख सकते हो. सो बी वेरी केयरफुल. नाउ द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट. 1 वोल्ट कब कहेंगे? फॉर्मूला में जब आप वर्क भी कर रही हो 1 जूल और चार्ज भी है 1 कूलम का, तब जो आपका पोटेंशियल होगा वो आपका 1 वोल्ट का होगा. हेंस द पोटेंशियल ऑफ SI यूनिट में वोल्ट लिख सकते हैं. SI यूनिट भी वोल्ट लिख सकते हैं. हाँ, या तो वोल्ट लिखिए या जूल पर कूलम लिखिए, दोनों सेम है. या आपके एक साइंटिस्ट अल्सांद्रो वोल्टा के रिस्पेक्ट में ऑनर में ये
वोल्ट जो है ऐसा यूनिट लिया गया. Hence the potential at a point is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb charge from infinity to that point. ये आपका नीचे जो ये ब्रैकेट में 8.7 फॉर्मूला है ना, ये आपका 1 वोल्ट का डेफिनेशन है. तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू व्हाट पूछ दे व्हेन द पोटेंशियल इज 1 वोल्ट या व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट, तो आपको ये फॉर्मूला के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जब आप 1 जूल वर्क डन कर रहे हो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में, तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट के इक्वल होगा. 1 वोल्ट कहिए या फिर 1 जूल पर कूलम कहिए. पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये डिफरेंस जो क्रिएट होता है यहीं से आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शुरू होगा. तो ये इन प्रैक्टिस व्हेन वी कंसीडर द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट हमने बना लिया जो क्लोज है और उसमें 2 पॉइंट है ए एंड बी. वी कंसीडर ओनली द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी. देयरफॉर इट इज नॉट नेसेसरी टू नो द एग्जैक्ट पोटेंशियल एट ईच पॉइंट ए एंड बी. इट इज सफिशिएंट टू नो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी. यूजिंग द definition of potential at a point, the potential difference between 2 point can be defined. एक पॉइंट पर तो पोटेंशियल आपने देख लिया कि जब हम मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा था, अभी फॉर्मूला भी निकाल लिया. आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 point is equal to the work done per unit charge in moving a positive trace charge from one point to the another. तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अभी जो आप पोटेंशियल था उसमें आप इन्फिनिटी से चार्ज को मूव करा रहे थे. पोटेंशियल डिफरेंस में आपके पास वो जो है पॉइंट्स नोन है कि ए से बी तक या कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट्स उसके बीच में आपको चार्ज को मूव कराना है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है. और पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. इफ W joule of work is done in moving a test positive charge q coulomb per a point to a point B, the potential difference between the 2 point A and B is. तो पोटेंशियल डिफरेंस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर आप चार्ज को मूव करा रहे हो तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू. दोनों ही वोल्ट है ना? हाँ, दोनों तो सेम है ना. एक है पोटेंशियल. पोटेंशियल टर्म किसके लिए था? इन्फिनिटी से पॉजिटिव चार्ज मूव करा रहे थे. और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दोनों पॉइंट हमारे पास नोन है, ए और बी. Okay, ma'am. Note the potential difference between 2 point of an electric circuit is measured by a voltmeter. जो कि मैंने शुरू में ही इस चैप्टर के बिगनिंग में आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि क्लोज सर्किट बना दिया हमने तभी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और वो क्लोज सर्किट में ही हम क्या करेंगे, वोल्टमीटर लगाकर मेजर करेंगे कि कितने वोल्ट का करंट पास हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. नहीं कहते कितना वोल्टेज आया है, बात तो होती है, कभी हाई वोल्टेज आता है कभी लो वोल्टेज टर्म यूज होता है. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ द वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर इज अ 1 जूल. दैट इज 1 वोल्ट इक्वल्स टू, सिमिलर है जो आपको 1 वोल्ट वाली डेफिनेशन मैंने प्रीवियस दी थी. जो ब्रैकेट में है वो नोट भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज मेजर बाय वोल्ट मीटर विच इज कनेक्टेड अक्रॉस दोज पॉइंट्स इन पैरेलल. मैंने आपको बताया पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, दैट्स वाई वी यूज द डिवाइस वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस. Taking care of that positive mark terminal of voltmeter is connected to the higher potential point. So concept of resistance. तो जब इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर में फ्लो होती है तो वो रेसिस्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बहुत रेसिस्ट करता है. तो कुछ ऐसे भी आपके मटेरियल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को बहुत ज़्यादा रेसिस्ट करते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी करेंट जो बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा है और वो थोड़ा रेसिस्ट कर रहा है, रेसिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो वो एनर्जी कहाँ किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. हीट एनर्जी में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. और इसी का एप्लीकेशन आपको ये कि इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कोई एप्लीकेशन बताओ अपने डेली लाइफ का. मैम वापस रिपीट करिए. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बताओ, कोई ऐसा डिवाइस जिसका यूज करती हो. लाइक इन्वर्टर? नहीं, तो बहुत इन्वर्टर तो आपकी बैटरी चार्ज होती है और जब लाइट कटता है तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी करंट, ये नहीं इन्वर्टर नहीं, वो
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बेस्ट एग्जांपल आयरन, और क्या होगा एक वो इलेक्ट्रिक हीटर। Concept of resistance: when current flow through a conductor, say a metallic wire, the conductor wire offers some obstruction to the flow of current, that is it offers some resistance to the movement of charge through it. Thus, तो definition क्या होगी resistance की? kindly mention in your note. The obstruction offered to the flow of current to the conductor or wire is called resistance. Okay. Case of resistance: when a metal is formed in atom lose electron from its outer orbit. A metal or conductor has a large number of wandering electron in an equal number of fixed positive ion. The positive ions do not move, while the electron moves almost freely inside the metal. These electrons are called free electron. They move at random, colliding amongst themselves and within the positive ion in any direction as shown in figure 8.2. Due to their random motion, the net flow of electron in any particular direction is zero, so no current flow. तो जब तक आप इसे किसी पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह क्रिएट करके मतलब प्रॉपर बैटरी वगैरह से कनेक्ट ना करो, मतलब प्रॉपर सर्किट ना डेवलप करो, तो कोई भी एक मेटल जैसे ये मेरे लेकिन ये तो न्यूट्रल मेटल हो जाएगा। जैसे बर्तन है ना किचन में, यूटेंसिल्स, वो मेटल के एग्जांपल हैं, तो उनमें ना इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड वे में मूव करेगा, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देंगे, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे आप फिगर 8.2 में देखो, जो आपके पॉजिटिव चार्ज तो अपने प्लेस पे है। सेकेंड फिगर में देखो, जैसे ही सेकेंड फिगर में आप मेटल को सेल से बैटरी से कनेक्ट किया ना, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो जब सब एक डायरेक्शन में मूव करें यानी कि एक एनर्जी एक डायरेक्शन में मूव हो रही है, और ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। ओके मैम। चलिए, when the end of the metal wire is connected with a sail, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया डायग्राम से, बट ये पैराग्राफ रीड कर दे रहे हो, और a source of current, that is when a potential difference is applied across the end of the metal wire, तो बैटरी क्या करती है? बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी, और ये पोटेंशियल डिफरेंस सारे इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में मूव करा देगा, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? फ्लो हो जाएगी। That is when a potential difference is applied across the end of the metal wire. The electron inside it experience a force in the direction from the end and negative terminal towards the end in a positive terminal to the conductor. As towards the positive end is shown in figure 8.2b. Due to the force, this speed increased. But during the movement, they collide with the fixed positive ions. तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसमें जो पॉजिटिव चार्ज डायग्राम आप देख रहे हो उससे वो क्या करेगा? टकराएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अपने प्लेस में ही रहेगा। Fixed positive ion in between themselves and lose some of their kinetic energy due to their speed decreases. तो जब वो पॉजिटिव आयन से ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाएगी वहाँ पे। सम ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच देयर स्पीड डिक्रीज, और काइनेटिक एनर्जी थोड़ा बहुत लूज होने की वजह से उनकी स्पीड जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। दिस लॉस्ट एनर्जी हीट्स अप वायर आफ्टर द कोलिजन, दे आर अगेन accelerated toward the positive potential due to existing potential difference, so their speed again increase and they again in collision with the positive ion their speed decreases. This process continue. तो बार बार जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं पॉजिटिव आयन से, वो अपने प्लेस पे फिक्स हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लिटिल बिट लूज हो रही है, तो वो एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव इन बल्क विथ अ continuously increasing speed, but there is a overall drift of electron towards the positive terminal due to a metal wire offers some resistance to the flow of electron through it, और यही जो है resistance property होती है। The resistance of a conductor depends on the number of collisions suffered by the electron in positive ion while moving from one end to another end। तो ये जो resistance है वो कंडक्टर किस तरीके से है, कितना ज़्यादा उसके पॉजिटिवली आयन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट्स में कोलाइड कर रहे हैं, वो पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही हीट एनर्जी में इंस्पेड, और यहीं पे से आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अराइज होगा, दैट इज ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन भी देखेंगे और ये कैसे एक्सपेरिमेंट करके ये लॉ मतलब डिराइव हुआ ये भी देखेंगे। बोलिए।
मैम ड्रिफ्ट का मतलब? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक टर्म होता है, मतलब कि एक दिशा में बढ़ते जा रही हैं। ओके मैम। If two conductor at different potential are kept in a contact and are joined by a metallic wire, तो पहला कंडीशन क्या है कि डिफरेंट पोटेंशियल है दो कंडक्टर का और उनको हम मेटालिक वायर से ज्वाइन कर दे रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन्स begins to move from conductor having an excess of electron to the conductor having a deficit of electron, तो मूवमेंट होने लगा इलेक्ट्रॉन का, इट मीन्स की इलेक्ट्रिसिटी होगी। ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अदर अ current began to flow between them. These flow continue till both the conductor acquire the same potential. Then the flow of current between them stop. Hence, for a continuous flow of current in a metallic wire, the two conductor at its end must maintain a definite potential difference. In other words, for a continuous flow of current in a conductor, a constant potential difference has to be maintained across the end. तो देखो एक ये आपका कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर, इन दोनों के का जो है, दोनों को मैंने मेटालिक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है और इसमें एज कम्पेयर टू दिस वन ज़्यादा है, तो इससे इसमें क्या होगा, फ्लो होने लगेगा करंट का। कब तक फ्लो होगा? जब तक इन दोनों में इक्वल ना हो जाए। तो इस केसेस में एक डिवाइस ऐसी होनी चाहिए जो पोटेंशियल डिफरेंस को उनमें मेंटेन करके रखे। इन 1826 अ जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज सीमन ओम by his experiment found a relationship between potential difference and current in a conductor. तो ये जॉर्ज साइमन ओम्स ने एक्सपेरिमेंट किया 1826 में, जबकि हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी नहीं हुआ था, वो भी हमारा 1857 में हुआ था। उस समय हम वो थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, उस समय वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने ये तीनों में रिलेशन निकाला, किस में? करंट में और पोटेंशियल डिफरेंस में। स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, चेंज नहीं करना है। स्टेटमेंट एज इट इज एग्जाम में अगर पूछे तो मेंशन करना होता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लाइन है? करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स ends provided the physical condition and the temperature of conductor remains constant. टेम्परेचर वेरी होने से ये रिलेशन थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। तो मेंशन दिस all the terms mentioned in this definition. Current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference. It means जितना ज़्यादा potential difference उतना ज़्यादा flow of current होगा। The direct proportionality between current and potential difference implies that if the potential difference across the end of conductor is double, the current flowing is also get double. न्यूमेरिकल्स में एमसीक्यू में एक दो क्वेश्चंस ऐसे पूछ देंगे कि अगर किसी कंडक्टर में क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहे हो? डबल कर दे रहे हो, तो करंट क्या होगा? तो करंट भी डबल हो जाएगा, बिकॉज करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल difference. So, if a current I flow in a conductor when the potential difference across its end is V, then the according to Ohm's law, I is directly proportional to V. यहाँ से ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट शुरू हो रहा है। ये जो सिंबल ऐसे यूज हुआ है ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी मीन्स इफ x इज इंक्रीजिंग इट मीन्स y इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन एक्स। तो जब भी आप ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो दिया हुआ है ना, पहला आई इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी, ये साइन हटाओगे तो कुछ कांस्टेंट टर्म उस साइन के जगह पे यूज होते हैं। तो हमने आई को वी के जस्ट डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इन इक्वेशन 8.9 वी पुट कांस्टेंट इक्वल्स टू आर, तो इट मीन्स यही आपका रेसिस्टेंस वैल्यू होती है। तो अब देखो वी इक्वल्स टू आई आर, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है, V इक्वल्स टू आई आर। ये जो 8.10 में फॉर्मूला है V इक्वल्स टू आई आर, इसको तुम शुरू वाला I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है ना, तो वहीं समझो कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जैसे ही हम हटाएं तो वहां पे जो कांस्टेंट टर्म यूज हुआ है वो कांस्टेंट टर्म R है। ओके मैम। The resistance R is a constant at a given temperature for a given temperature conductor. Why it is mentioned given temperature? Because in a variation of temperature, this result relationship also varies. So, if I is equals to 1 and V equals to R, तो जब आपका I की वैल्यू मतलब करंट अगर 1 एम्पियर है तो V इक्वल्स टू R, यानी कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस वो रेसिस्टेंस की इक्वल हो जाएगा। Yes, ma'am.
Thus, the resistance of a conductor is numerically equals to the potential difference applied across its ends for the flow of unit current through it. इसका मतलब कि जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, और रेसिस्टेंस के ऐसा यूनिट ओम ही होगी। चलिए, यूनिट ऑफ आर इक्वल्स टू यूनिट ऑफ वी बाई आई। तो वी का यूनिट क्या है? वोल्ट, और आई का यूनिट वी का ऐसा यूनिट क्या है? बताइए, आप खुद ही बताइए। वी का वोल्ट है। हाँ, तो वोल्ट को भी और तो वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आई का? और आई का आई क्या है, यही बता दीजिए। करंट। आई करंट है, तो उसका ऐसा यूनिट क्या है करंट का? कॉलम है। और एक कॉलम चार्ज का है मेरी जान। करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर। ए से रिप्रेजेंट करना था। प्लीज़ आज आप इन सारी चीज़ों का नोट्स कर लेना, ताकि कल के क्लास के लिए फिर हम लोग बैक आके रिवीजन करेंगे तो आपके डाउट्स कभी क्लियर नहीं होंगे। इसलिए आज जितनी भी चीज़ें, इसीलिए मैं बहुत तेज़ नहीं भागी हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट है वहाँ वहाँ मैं रुकी हूँ। आप इन सबको मेंशन कर लेना, 2-3 बार गो थ्रो करना। न्यूमेरिकल्स आने हैं इस चैप्टर से, डेफिनेशन भी डायरेक्टली आनी है, ग्राफ से भी क्वेश्चन आने हैं, सो बी वेरी क्लियर। अप्रॉक्स 5, 6, 7, 8 मार्क्स आप इस चैप्टर से होने ही होने। आप देख लेना सिलेबस में वेटेज कितना है इस चैप्टर से, बट क्वेश्चन आने ही आने हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड दैट ऑफ करंट इज एम्पियर। सो द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर, रिटन एज वी ए इनवर्स, विच इज नेम एज द साइंटिस्ट ओम एज ओम। तो इसको वी ए इनवर्स को आप वोल्ट पर एम्पियर को आप ओ एच एम ओम भी लिख सकती हो। तो रेसिस्टेंस के ऐसा यूनिट या तो आपका ओम होगा, और ओम ही किसके इक्वल होता है? ओम ही आपका वोल्ट पर एम्पियर के इक्वल होगा। क्लियर? क्लियर है या यहाँ पे क्लियरिटी करूँ कि कैसे ऐसा यूनिट डिराइव किए जाते हैं? यस मैम, क्लैरिटी कर दीजिए। चलिए देखिए, आप जब पढ़ेंगी तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, आर इक्वल्स टू वी बाई आई। तो जब देखो आर को, आर का ही ओ एच एम भी हम बोलते हैं ऐसा यूनिट, जो आपके साइंटिस्ट थे उनके ऑनर में। वोल्ट का ऐसा यूनिट वी ही होगा, वोल्ट, और आई का एम्पियर होगा। तो नीचे एम्पियर समझ लीजिए। तो ये जो नीचे होता है, तो जब हम इसे ओम ओ एच एम इक्वल्स टू 1 ओम इक्वल्स टू, तो वोल्ट एज इट इज रह जाएगा, और एम्पियर को आप ऊपर ले जाओगी तो ए इनवर्स हो जाएगा। यस मैम। या तो आप वोल्ट पर एम्पियर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे पर का साइन लगा के, अगर इन्वर्स नहीं करना चाहते हो तो कुछ नहीं, वो वोल्ट की ऐसा यूनिट वी और आई की ए, तो वी बाई ए, और वी बाई ए ओम के इक्वल होता है। वी बाई ए को ही ओम बोला जाता है। इसलिए मैंने बताया ना, अगर फॉर्मूला याद है ना, तो फॉर्मूला में जो जो टर्म यूज है उसका यूनिट रख दोगी ना, तो आपका ऐसा यूनिट डिराइव हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। और ओम को ओमेगा साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे देखो, जो सिंबल लिखा है ना ओमेगा स्मॉल ब्रैकेट में, वो ओमेगा सिंबल ही यूज होगा। एग्जाम में दे देगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा, तो सिंबल देख के समझ जाना कि रेसिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है। ओके मैम। So unit of resistance is volt ampere or VA inverse, which is named after the scientist Ohm as Ohm. It is denoted by the symbol omega. 1 ohm is defined as, जो definition है 1 volt by 1 ampere, फॉर्मूले में रख दिए जो फॉर्मूला। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब कि रेसिस्टेंस आपका 1 ओम है। सो ये 1 वाला ना क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसलिए ये मेंशन किया हुआ है। द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू इट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द इंस ऑफ द कंडक्टर। फॉर्मूले में ही सारी वैल्यूज जब हमने 1 कर दी है। क्लियर?
Yes, ma'am. अब बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस हो तो उसके लिए हम कौन सा वो मेजरमेंट टर्म यूज़ करेंगे? हाई रेसिस्टेंस आर मेजर यूनिट किलो ओम, के ओमेगा का साइन है, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस है, और उससे भी ज़्यादा हाई है तो मेगा ओम, एम ओमेगा, वेयर 1 किलो ओम इक्वल्स टू 10⁻³ ओमेगा और 1 मेगा ओम इक्वल्स टू 10⁻6 ओमेगा. Yes, ma'am. Conductance. It is the reciprocal of resistance is called conductance. It is denoted by letter G. Thus, conductance equals to 1 by resistance. So, resistance का just reciprocal क्या होगा? Conductance. तो एक चीज देखना कि अगर resistance की वैल्यू कम है, इसका मतलब conductance क्या होगा? ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा हाँ, और कम होगा. ये इनवर्स रिलेशनशिप है. इट मीन्स कि अगर रेसिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, और कंडक्टेंस ज़्यादा है Yes. और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा. कम होगा. इनमें इनवर्स रिलेशनशिप है. क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, सो बी केयरफुल. आपको ये टर्म यूज होता था, मुझे लगता है कि हम लोग इसी टर्म को, जो कंडक्टेंस है, इसको रेसिस्टिविटी हम लोग पढ़ते थे इस टर्म को, क्योंकि रेसिस्टिविटी हम लोगों ने पढ़ा था रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल. तो मैं एक बार कंफर्म कर लें, अकॉर्डिंग टू मी ये दोनों सिमिलर टर्म ही होंगे, आपको बस कंडक्टेंस दिया हुआ है. सो इसका यूनिट देखो, अब 1 तो एज इट इज रहेगा. रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट मैंने अभी आपको ओमेगा और ओम बताया. Yes, ma'am. तो आप 1/ओमेगा लिख दो और ओमेगा को ऊपर ले जाओगी तो ओम इनवर्स हो जाएगा. Yes, ma'am. तो आप डिराइव करना सीख गए ना ऐसा यूनिट. Yes, ma'am. सो इट्स यूनिट इज ओमेगा इनवर्स और साइमन, या तो ओमेगा इनवर्स या साइमन बोलो, सेम नाम है. नाउ अ डेज वी डू नॉट राइट ओम इनवर्स. तो आज के टाइम में ये नहीं यूज हो रहा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन. साइमन के बदले सिंबल ऐसे ही यूज हो रहे हैं. ये आपका जो डायग्राम है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं. ये IV ग्राफ है, मतलब कि करेंट और वोल्ट का ग्राफ है. देखो वो एक स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स कि डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है इनमें. For a metallic conductor, the ratio Vi is constant for all value of V and I. If the graph is plotted in a current I against the potential difference B, we get a straight line passing through a origin. जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे, करंट भी उसी के रिस्पेक्ट से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. सो स्लोप जो होता है वो tan थीटा होता है. तो आप ये जो ग्राफ देख रहे हो, अपवर्ड एरो y एक्सिस है एंड आपका जो हॉरिजेंटली एरो है वो x एक्सिस है. तो x/y y/x, तो वो क्या होगा? tan थीटा होगा. Yes, ma'am. तो स्लोप ऑफ IV ग्राफ इज डेल्टा I. डेल्टा का मतलब लिटिल चेंज, मतलब I से थोड़ा भी वेरिएशन हुआ वो डेल्टा, और डेल्टा V मतलब कि थोड़ा बहुत जो भी वेरिएशन हो रहा है. Yes. डेल्टा से घबराना नहीं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है लिटिल वेरिएशंस को शो करने के लिए. ओके मैम, जो ये डेल्टा आई ये इसको हम लोग 1 बाय रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर भी लिख सकते हैं. क्या बोल रहे हो आप? इक्वल है दोनों. क्या? डेल्टा आई बाई डेल्टा वी जो है, हाँ, वो इक्वल 1 बाई रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. ये मतलब पूरा फॉर्मूला है. हाँ, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का डेरिवेशन है. डेल्टा वगैरह से घबराना नहीं है. I/V तो ये आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि ये चेंजेस बता रहा है ना. ग्राफ क्या चेंज बता रहा है, देख रही हो? V इंक्रीज हो रहा है तो I भी इंक्रीज हो रहा है. अब तुम डेल्टा को ऐसे समझो, 1 2 3 4 5 स्टार शो हो रहा है क्या स्ट्रेट लाइन पे? 3 2 3 4 5. यस मैम. तो पहले स्टार से दूसरे स्टार, जो O के नियर वाला स्टार है, पहले स्टार से दूसरे स्टार के बीच में V और I दोनों अलग अलग होंगे. यस मैम. तो मान लो कि पहला स्टार को तुम V1 और I1 कंसीडर करो, दूसरे स्टार को V2 I2. तो I1 माइनस I2 क्या हो जाएगा? डेल्टा I, और V1 माइनस V2 डेल्टा V हो जाएगा.
ओके मैम। डेल्टा मतलब वहीं चेंज होता है। लिमिटेशंस क्या थे ओम्स लॉ के, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इससे। ओम्स लॉ ओबे ओनली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैंने बोला ना कि टेम्परेचर वैरी कराओगी तो ये आपका जो मतलब ये रिलेशनशिप है वो वैरी कर जाएगा। अब ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन हम लोग कल करेंगे, क्योंकि आप पहले ये सारे जो बेसिक टर्म्स है वो क्लियर कर लो। ओके मैम। आज की क्लास की कोई डाउट?